Good evening, my future IITians, and welcome to this solo. How to find the domain of a function? I guess 17 question we have completed. So this is question number 18. Okay? Some of the questions I am giving you for your thinking ability. पहला question बहुत easy है. That's why I will do this. Denominator should not equal to 0. Find the x for which function is 0 and then take care of personal domain. Like केस में ये b केस में even square root 1 by never simplify a function before finding the domain. So now question number 20. सारे मिला हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस करेंगे. Like let's start. Okay, now look at this one. this हमारे जो कर्व है cos x is greater than equal to half, वो कौन से केस? Try yourself, try your progress. सेकंड वर्स x का पर्सनल डोमेन जो है x belongs to ओपन ब्रैकेट का डोमेन इसमें से निकलेगा, इसका डोमेन इसका केस लिखो. log इवन स्क्वायर रूट है तो ये पे 1/2 है. तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है that should greater than equal to 0, like right. sin inverse x का पर्सनल डोमेन क्या होता है? -1 से 1 तक. After this you need to do by yourself using the hands. Good evening, my future IITians, and welcome to this solo learning journey with ASRG. Okay, this is class number 6 of relations and functions. In this class, we will first complete two problems, and I will give you some of homeworks. Okay, which you need to do. You need to use your own brain. You will be an IITian, so okay, you need to use your brain. Okay. Yes, and after that we will complete how to find the domain of a function, and yes, domain related problems we will complete, and maybe later range also. Okay, so first this question. In the previous class we are almost done about 18 or 19 question. I guess 17 question we have completed. So this is question number 18. Okay, the number of relations of the set on the set 1, 2, 3. तो दोनों साइड में जो सेट है रिलेशन में वो क्या है? 1, 2, 3 है. तो जो रिलेशंस बनेगा वो किसका सबसेट बनेगा? ए क्रॉस ए का सबसेट बनेगा. ओके, यस. सो नाउ containing 1, 2 and 2, 3 which are reflective and transitive but not symmetric. तुम्हें ऐसे रिलेशंस बनाना है, I mean ऐसे रिलेशन का नंबर बताना है. टोटल कितना ऐसे रिलेशन मिलेगा which are reflective and transitive but not symmetric and also contains 1, 2 and 2, 3. Okay, these two pairs should be there. ऐसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, so I hope ये भी आसान ही होगा. ये भी actually I will provide just a hint. Okay, so how many pairs are there? Total 9 pairs. That is 1, 1, 1, 2, 1, 3, right? 2, 1, 2, 2, 2, 3, and now 3, 1, 3, 2, 3, 3. This will be the total 9 pairs in this A cross A, right? Yes. Now look at this. You need to find a relation. Find a relations from this set so that it will be reflective, transitive but not symmetric, and also 1, 2 and 2, 3 should be there. Okay, so first एक हम लोग R देखते हैं. ऐसे टोटल 5 ही रिलेशंस बना सकते हैं हम लोग. देखते हैं वो कैसे. देखो, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्टिव होने का कारण क्या है? इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ए सेट में कितने एलिमेंट है? कहाँ लिखे? ये पे लिख देते हैं. A is equal to 1, 2, 3, राइट. ये सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो सबसे पहले 1, 1, 2, 2 and 3 should be there. Then it will be reflexive. Okay, so 1, 1, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव भी बनाना है इसीलिए सबसे पहले ये वाला 3 एलिमेंट हमें पुट करना है. 3, 3. Along with this 3, you should also put 1, 2 and 2, 3. These elements are mandatory. Okay, these elements are mandatory. So how many relations you will form? Like this one. Now R1, this is R2. Okay, you 1, 1, 2, 2, 3, 3. Now 1, 2, 2, 3, right? इतना तो आपको लेके चलना ही है. इसके साथ साथ बचा कितना एलिमेंट्स है? देखो, ये वाला एलिमेंट हो चुका है, ये वाला एलिमेंट भी
ये भी 1,2, ये भी, और 2,3, 2,3, ये वाला 5 को आपको रखना ही है। इसके साथ साथ बाकी और कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। और तो टोटल कितने वेरिएशंस मिल सकते हैं हमें? हर एक को ऐड करके देखो। सबसे पहले इसके साथ हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 2,3 एलिमेंट्स उसमें डाल के देख लेते हैं। ओके, नाउ चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? यस, इट्स रिफ्लेक्टिव। अप टू दिस इट इज रिफ्लेक्सिव, राइट? यस। अब सिमेट्रिक है कि नहीं? अब देखो 1,2 है, पर क्या 2,1 है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब ट्रांजिटिविटी शो करो, चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है। अप टू दिस चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक होता है। नाउ इन दोनों के लिए चेक करो, 1,2 वो सारे एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें पहले एलिमेंट 2 है, ये 2 है एंड ये है। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा? 1,2, 2,2 एंड 1,2, 2,3, राइट? So इस केस में 1,2 बनेगा, yes 1,2 is there, and in this case 1,2 1,3 बनेगा। So 1,3 is not here। So ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। So ये वाला रिलेशन इसमें नहीं आएगा। ओके, ये वाला जो रिलेशन है वो इसमें नहीं आएगा। आई होप क्लियर है अप टू दिस? यस। नाउ इसको चेक करो, 2,3, इसको चेक करो, 2,3, 2,3 नहीं 1,3 पुट करो इसमें, 1,3। ओके, सो अप टू दिस इज देयर, सो इट्स रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ 1,2 एंड 2,3 के लिए तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर लिए, राइट? 2,3 के लिए 1,3 आनी चाहिए थी, पर यहीं पे नहीं है, इसीलिए वो ट्रांजिटिव नहीं है, पर इसीलिए हम लोग 1,3 यहीं पे बैठा दिए। ओके, सो अप टू दिस इज ट्रांजिटिव। अब इसके लिए चेक करो 1,3, 3 किसके एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है, पहला एलिमेंट। तो इनके साथ जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे 1,3 आएगा, तो ये ट्रांजिटिविटी होल्ड करता है। ओके, सो दिस रिलेशन इट्स रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। आवर एक्सपेक्टेड रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन द सेट containing 1,2, 2,3 which are reflective, transitive but not symmetric, ये वाला रिलेशन उसके अंदर काउंट होगा। ओके, टोटल ऐसे 3 रिलेशन यू विल फाइंड। ओके, टोटल ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट होंगे ऐसे यू विल फाइंड। अब इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट देके देखो, 2,1 पुट करो यहीं पे। ओके, इसके बाद कोई 2,1 एलिमेंट पुट करके देखो, फिर 3,1 पुट करो, फिर 3,2 पुट करो। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी पुट करना पड़े तो करो, अगर वो ट्रांजिटिविटी के लिए। ओके, यस। तो ऐसे टोटल 3 रिलेशन आपको मिलेगा which are transitive, reflective but not symmetric. Okay, I hope you got this. So this was the first question for today's class. We're recording. Yes. Now some of the questions I am giving you for your thinking ability. Okay, you just need to think. Okay, मैंने 3 बोला आंसर, हो सकता है तुम एक और रिलेशन दिखा दो जो रिफ्लेक्टिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक है। अगर होता है तो निकाल के दिखाओ। 3 ही आंसर है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि आंसर गलत है, यू कैन डू दिस। क्वेश्चन नंबर 19, चेक द फॉलोइंग, check the following for reflexive, symmetric and transitive। अभी जो रिलेशंस हम देने वाले हैं, मतलब ये आपका होमवर्क है, ट्राई योर प्रोग्रेस है। ओके, फर्स्ट जो है पहला वाला क्वेश्चन है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, इट मीन्स ए कॉमा बी। ओके,
if mod of A is less than equal to mod of B and A comma B belongs to R, मतलब A comma B रियल नंबर में बिलोंग करता है. ओके, तो ये वाला रिलेशन देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक. Okay, check whether it is reflexive, symmetric or transitive. Okay, now second relation क्या है? R is equal to A comma B such that mod of A minus B is greater than half, where A comma B belongs to R, रियल नंबर. अच्छा, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये भी ऐसे ही दिया हुआ है. ओके, A comma B, यहाँ पे R is equal to A comma B such that mod of A is less than equal to mod of B, where A comma B belongs to R. जस्ट उसको वैसे फॉर्मेट में दिया गया, थोड़ा सा डिफरेंट मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज करके. ओके, तीसरा क्वेश्चन, A is related to B, A is related to B, that implies A is less than equal to B, where relation R is defined on real number set. Okay, B cube where relation R is defined on real number set. Okay, is defined on real number set. आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं. ओके, 4. क्वेश्चन नंबर 4, R is equal to A comma B belongs to n cross n such that mod of A minus B is less than equal to 13. इन सबको आपको चेक करना है कि whether this are reflexive, symmetric or not transitive. Sorry, what transitive है कि नहीं. R is equal to A comma B such that A comma B belongs to n cross n, मतलब A comma B जो है वो n में बिलोंग करता है. ओके, n comma n such that mod of A minus B is not equal to 13. ओके, यस. 5 क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में सोचना है. इसके बाद एक और क्वेश्चन जो मैं 6th क्वेश्चन, द रिलेशन R, ये वाला यहीं पे करवा देता हूँ. द रिलेशन R is defined. The relation R is defined on n cross n as follows. A comma B related to C comma D. A comma B related to C comma D लिखा हुआ है वही पे. ओके, दिस implies, ये क्या इम्प्लाई करता है, A प्लस D इक्वल टू B प्लस C. अच्छा, यहीं पे भी डबल इम्प्लाई है क्या, इज इक्वल टू B क्यों, मतलब ये इस साइड को इम्प्लाई करता है, ये साइड भी इसको इम्प्लाई करता है. ओके, ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दैट्स व्हाई आई विल डू दिस, आई विल सॉल्व दिस हियर. ओके, दिस वन इज वेरी इजी. नाउ लुक एट दिस वन. The relation R is defined on n cross n. So
this will be n and this will also be n, and the relation r is this, right? relation r is this. now इसमें एलिमेंट क्या है, ये कॉमा बी, ये किसके साथ रिलेटेड है, सी कॉमा डी, ओके, सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है, ये डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है कि a प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी। आई होप यू गॉट दिस। नाउ फर्स्ट व्हाट वी विल चेक, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ओके। देखो जनरल में अगर वेरिएबल अगर इस डेफिनेशन को प्रूफ कर रहे हैं तो फिर हम लोग उसको वैसे ही डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव बोलेंगे। बट वेरिएबल के थ्रू नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा है, देन तुम्हें स्पेसिफिक नंबर चूज करना है, ओके। सो देखो ये वाला ए कॉमा बी, सो हम लोग क्या चूज करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए ए कॉमा बी आर, ए कॉमा बी एक्स आर एक्स ऐसे चूज करते हैं ना रिफ्लेक्सिविटी के लिए। एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, so a comma b is related to itself, a comma b। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन, देखो a प्लस b होगा, a प्लस d मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट उसका लास्ट एलिमेंट के साथ, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट के साथ इज इक्वल टू इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ओके, b प्लस a। क्या ये दोनों होल्ड कर रहा है, यस, ये डेफिनेशन होल्ड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, ओके। नाउ सो इट्स रिफ्लेक्सिव, ओके। नाउ सिमेट्रिसिटी हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, ए कॉमा बी रिलेटेड टू बी कॉमा, नहीं ऐसे चेक नहीं करते। सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, उल्टा हो गया, ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए सी कॉमा डी भी ये कॉमा बी में रिलेट कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले इसके हिसाब से क्या होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। नाउ उल्टा करके देखते हैं, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सी प्लस डी रिलेटेड टू ए प्लस ए कॉमा बी। इस डेफिनेशन को होल्ड करवा के देखते हैं, तो इसके साथ सी प्लस इसका लास्ट एलिमेंट सी प्लस बी, इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका लास्ट एलिमेंट सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, डी प्लस ए। क्या होल्ड कर रहा है, ये वाला क्या सेम है, ऊपर वाला चीज और नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या दोनों सेम है, ए प्लस डी इसका राइट हैंड साइड में ए प्लस डी, इसका लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी, इसका लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी, बात एक ही बराबर है, ओके। सो ये सिमेट्रिसिटी भी होल्ड करता है। नाउ ट्रांजिटिविटी चेक करो, नाउ ट्रांजिटिविटी चेक करो। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका मतलब क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। शायद लिखा वर्ड थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा होगा, बट यस मैं जो बोल रहा हूँ उसी को फॉलो कीजिए। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसको तुम ये मान लो इक्वेशन। नाउ सी कॉमा डी रिलेटेड टू कुछ एलिमेंट बोलो, ई कॉमा एफ के साथ रिलेटेड है, ई कॉमा एफ के साथ रिलेटेड है। अब डेफिनेशन के हिसाब से सी प्लस एफ होगा, राइट, सी प्लस एफ होगा इज इक्वल टू डी प्लस ई, डी प्लस ई बी। नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, राइट। हमें चाहिए ये सी कॉमा डी सॉरी ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो क्या इसमें से मिलेगा, लेट्स चेक। इसको अगर हम लोग ऐड करें ए एंड बी को तो क्या मिल रहा है इसे, क्या मिलेगा इसी से, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिल रहा है, राइट, यस। तो सी एंड डी दोनों साइड से आउट हो जाएगा। जब सी एंड डी दोनों साइड से आउट हो जाएगा, ओके, इसके बाद हम ए पे कर रहे हैं, ओके। तो उस इक्वेशन में सी एंड डी दोनों साइड से जब आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, सी एंड डी जब दोनों साइड से आउट हो रहा है
तो क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या, ये प्लस एफ राइट इज इक्वल टू बी प्लस ई। ए मिल रहा है कि नहीं? शायद हमने थोड़ा सा गलती कर दिया शायद, लेट मी चेक। ओके नहीं सही है। ओके सो दोनों तरफ से डी एंड सी को आउट कर रहे हैं हम लोग। ओके ये सी था, ये वाला जो है ये सी एलिमेंट था, इसको हमने काट के अलग कर दिया। ओके अब देखो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो वाला अगर डेफिनेशन को हम लोग प्रूफ करें, उस वाले डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन का हमें आना चाहिए क्या, ये कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए आना चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, ए प्लस एफ आना चाहिए, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट डेफिनेशन के हिसाब से। तो हमें आया क्या, यही तो आया है ना राइट साइड में। तो इसमें से हम लोग इम्प्लाई करके लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। सो ये ट्रांजिटिव भी है, तो एक रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। सो वी विल कॉल इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके सो आर रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। Okay, equivalence relation. This was very easy. That's why I solved it here. Okay, you should just need to check above 5. Okay, check that and try at your home. Okay, now we are going to move to find the domains. Okay, find the domain of a function. Okay, finding. Give a title, finding domain of function. Okay, finding domain of function. First, while calculating, while finding domain, you should remember, क्या remember करना है, remember 3 things. 3 things you should always keep in mind. First, denominator should not equal to 0. Okay, denominator should not equal to 0. Find the value of x. Find the value of x. इसको क्या हो गया, माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, let me check. Okay, now it's okay. Okay, first, denominator should not equal to 0. Find the value of x for which function is 0 and then eliminate. Okay, so first point क्या है, denominator should not equal to 0. Okay, find the values of x and later eliminate them. Okay, I hope clear है, eliminate them or remove them. Second point क्या है, the expression under even square root should always greater than
और इक्वल्स टू 0। ओके, इसका क्या मतलब है? मान लो कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, एक फंक्शन, इसमें कोई भी एक्सप्रेशन है, ओके, किसी भी एक्सप्रेशन है, इसके अंदर उसके बाद इवन नंबर, ओके, दिस इज इवन स्क्वायर रूट, लाइक ऐसा कह रहे हैं कि fx to the power 1/4 function of even square root, okay, this type of expression is given there. So in this case fx is लिख डालो, okay, in this case what you need to do just ये जो expression है fx is always should be greater than equal to 0, okay, is always should be greater than equal to 0. While calculating domain, you need to keep these things in mind. Okay, now see क्या है? Okay, in this case, take care of personal domain. Take care of personal domain. Take care of personal domain, like log बेस ए, ओके, लॉग बेस ए, ऐसे केसेस में ये, और ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, इसका पर्सनल डोमेन का ख्याल रखना है. लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस फॉर द केस ऑफ लॉग, ये should greater than 0, b also should greater than 0, and b should not equal to 1. ऐसे होता है, राइट? तो पर्सनल डोमेन का आपको ध्यान रखना है, ये इंटरसेक्शन है, ओके, ऐसे करके याद रखना है. ITF के लिए जैसे साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है, राइट? कॉस इनवर्स x का भी सेम होता है. ऐसे ही tan इनवर्स x का -∞ से ∞ तक होता है शायद, यस, -∞ से ∞. तो वैसे ही जो पर्सनल डोमेन है किसी भी फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ऐसे फंक्शंस के लिए उसका पर्सनल डोमेन का क्या खास ध्यान रखना है. फर्स्ट, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड लेटर एलिमिनेट और रिमूव देम, ओके. एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट should always greater than or equals to 0, like this. And इसके बाद कुछ नोट पॉइंट्स लिखना है, कुछ नोट पॉइंट्स और लिखो. लाइक ऐसा कह रहे हैं कि √/gx एक फंक्शन दिया है, ओके, तो आपको इसमें से क्या करना है? gx should greater than equal to 0. ये कौन से केस में है? ये बी केस में है. इवन स्क्वायर रूट 1/2 लिखा हुआ है ना, gx टू द पावर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड केस में देखो 1/gx, अगर फंक्शन ऐसे दिया है 1/gx, ओके, तो ये जो gx है शुड नॉट इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, ओके. अब तीसरा देखो, अगर 1/√gx ऐसे फंक्शन दिया है, तो इन दिस केस gx शुड ग्रेटर देन 0, ओके, gx शुड ग्रेटर देन 0, ऐसे होगा. ये तीन चीज आपको याद में रखना है हमेशा जब भी डोमेन फाइंड करना है, ओके. एक और 2-3 पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना है. इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके. This is very interesting actually. Finding domains of function is really very exciting, okay. When you will understand how to find them, this is really very enjoyable moment, will be very enjoyable moment, okay. बोर्ड मिटाना, लिखना टाइम टेकिंग तो है, पर क्या करें, ऐसे ही करना है, ओके.
या फर्स्ट नोट पॉइंट में चौथा वाला पॉइंट, ओके, नेवर सिंप्लीफाई अ फंक्शन बिफोर फाइंडिंग द डोमेन, ओके, नेवर simplify a function before finding domain. डोमेन फाइंड करने से पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है. इसका एग्जांपल्स हम देंगे थोड़ी देर में, जस्ट थोड़ी देर, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके. एंड अगर मान लो दो फंक्शंस हैं, y इक्वल टू जी एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स, दो फंक्शंस हैं ऐसे ही, और पहले का फंक्शंस जी एक्स एंड एफ एक्स, इसका जो डोमेन है d1 एंड इसका जो डोमेन है d2, ओके. y इक्वल टू जी एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स, इन दोनों का जो फंक्शन है d1 एंड d2, ओके. इसका सॉरी गलत बोला, इसका जो डोमेन है d1 है एंड दूसरा वाला है gx का डोमेन d1 है, fx का डोमेन d2 है. देन अगर ऐसा है तो देन d1 intersection d2 will be the domain of the following. मतलब अभी जो फंक्शन लिखने वाला हूं उन सब का डोमेन जो है d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, ओके. और वो फंक्शंस क्या क्या है, gx प्लस माइनस fx. gx एंड fx को अगर प्लस एंड माइनस दोनों करोगे तो उसका जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, ओके. एंड अनदर वन इज gx इंटू fx. अगर दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी जो दोनों का जो डोमेन निकलेगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा. एक पॉइंट यहीं पे याद रखना है, स्टार देके, कि gx बाय fx, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, ओके. d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस fx इज इक्वल टू 0. fx इक्वल टू 0 करेंगे, मैंने क्या कहा था, पहला पॉइंट याद करो, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0. तो डिनोमिनेटर में fx का x का वैल्यू फाइंड करो, देन रिमूव देम, ओके. So fx is equal to 0, find the values of x for which fx is equal to 0 and then remove. तो d1 intersection d2 minus fx is equal to 0. इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स को आपको रिमूव करना है, ओके. आई होप अप टू दिस इज क्लियर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस, ओके. फर्स्ट, और तो क्वेश्चन कितना था वो, 18, 19. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. So now question number 20. आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, P और F, ट्रू और फॉल्स बताना है. और क्या है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं, fx is equal to अंडर रूट x माइनस 4 इंटू x माइनस 7 एंड क्या है वो दूसरा, gx is equal to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ओके. हैव सेम डोमेन, क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 1 में
एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 एंड जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 हैव द सेम डोमेन। इन दोनों का डोमेन जो है वो सेम है। पहला स्टेटमेंट यही बोल रहे हैं। ओके, ये सही है कि गलत है ये आपको बताना है। पहला वाला देखो, इसके केस में क्या बोले थे हम लोगों ने, इवन स्क्वायर रूट है ना, तो x माइनस 4 इसको एक फंक्शन के तौर पे ट्रीट करो, f ऑन x, इसको दूसरे फंक्शन के तौर पे ट्रीट करो। तो ये क्या है, f ऑन x एंड g ऑन x, राइट, लाइक f एंड g, उसके बाद f एंड g का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ है, राइट हियर। तो इसका डोमेन जो निकलेगा इंटरसेक्शन, इसका डोमेन का इंटरसेक्शन करेंगे, राइट, यस निकालो। इस केस में ये कौन सा वाला केस है एक्चुअली, केस नंबर बी, एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, सो इसमें से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x का वैल्यू 4 से बड़ा है इक्वल है, x का वैल्यू 7 से बड़ा है एंड इक्वल है। तो इन दोनों से इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, x का जो वैल्यू है वो 7 एंड 7 से ज्यादा है, राइट। इंटरसेक्शन पोर्शन यही है। ये क्या है एक्चुअली, ये अगर नंबर लाइन है, ये अगर मान लो 4 है 7 है, एक बोल रहे हैं a से इधर तक और एक बोल रहे हैं a से यहाँ तक, तो कॉमन पॉइंट कितना है, ये कॉमन पॉइंट तो वही है, ग्रेटर देन 7 एंड इक्वल। ओके, यस। तो पहले का डोमेन तो वे निकला fx का। अब gx का देखो, gx का भी यही सेम b वाला, अंडर रूट ऑफ मतलब एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ इवन अंडर इवन स्क्वायर रूट, राइट, यस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए fx, राइट। इसी में से जो आपका वैल्यू मिलेगा x माइनस 4 एंड x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। और इसमें जो वैल्यू निकलता है वो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कमा 4 यूनियन 7 कमा इन्फिनिटी, ऐसे करके निकलता है, राइट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट होगा, इक्वल है क्लोज ब्रैकेट है। ये वाला जो है वो भी कर्व मेथड से इसको कर, नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट इसको वे भी कर्व मेथड से करना ज़्यादा आसान है। आगे भी जितना भी आएगा आपको वे भी कर्व मेथड ही यूज़ करना है। ओके, सो यू नीड टू जस्ट फर्स्ट लर्न वे भी कर्व मेथड। हाँ, हम लोग भी बेसिक क्लास में करेंगे ये, बेसिक मैथ्स क्लास में, बट कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यस, नाउ टेल, क्या ये और ये वाला दोनों सेम है? आंसर इज नो। सो दैट्स व्हाई ये जो फोर्थ वाला पॉइंट लिखा है, नेवर सिंप्लीफाई अ फंक्शन बिफोर फाइंडिंग डोमेन, बिकॉज इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसके अंदर ही पहले ही, तो यही वाला चीज़ आ जाएगा, देन डोमेन सेम हो जाएगा, बट दोनों का डोमेन सेम नहीं है। यही चीज़ समझाने के लिए ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चंस दिया गया। ओके, और एक और प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है, इसी में लिख देते हैं। ओके, एक और स्टेटमेंट 2 बोल रहे कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स एंड gx जो है x have different domains, क्या ये सही है या फॉल्स है? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ओके, दोनों का डोमेन जो है सेम नहीं है, एंड बोला गया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स एंड gx इज इक्वल टू x हैव डिफरेंट डोमेन्स। क्या ये सही है या फॉल्स है? ये वाला सही है। क्यों सही है, खुद सोचिए। देखिए, इसके केस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर
हम लोग जो फंक्शन डिफाइन किए हैं दैट डिफाइंड ऑन रियल नंबर के सेट में किए हैं, राइट? यस। और इसका जो डोमेन रियल नंबर का किसी भी पॉइंट को एक्स में बैठा वो जी एक्स देगा, सॉरी वो एक्स से आउटपुट दे रहे हैं, ओके? 5 पुट करेंगे तो 5, 0 पुट करेंगे तो 0, ओके? बट इन दिस केस अगर हम 0 पुट करेंगे नीचे हम लोग 0 नहीं रख सकते, ओके? डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे तो वो दुनिया खत्म हो जाएगी, ओके? सो डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं पुट करेंगे, ओके? क्या लिखा है? डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, बट यही पे जो है x शुड नॉट इक्वल टू 0, इसका जो रेंज सॉरी डोमेन है वो r माइनस 0, तो दोनों का डोमेन जो है वो अलग है, केवल एक पॉइंट के लिए ये वाला डोमेन और इसका डोमेन दोनों अलग है 0 पॉइंट के लिए, ओके? अप टू दिस आई होप यू हैव ग्रास्प, राइट? ग्रास्प भी बोलते हैं ना? Okay, now question number 21 and 22. Question number 21 is you just need to do all of them, okay? मैं बस बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ओके? फर्स्ट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही पे डोमेन बताना है। अच्छा, डोमेन का क्या मतलब है असल में? फंक्शन क्या है असल में? फंक्शन एक मशीन की तरह है, राइट? ये फंक्शन है, हम लोग कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट क्या है? x। तो वैसा कौन कौन सा इनपुट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके? कौन कौन सा इनपुट हम प्रोवाइड कर सकते हैं y पर आउटपुट, ओके? तो इस फंक्शन के अंदर f(x) के अंदर कौन कौन सा x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यही हम लोगों को फाइंड करना है, ओके? दिस इज द डोमेन, ओके? इसी को ही हम लोग को डोमेन कहते हैं, इसी इनपुट को ही हम लोग डोमेन कहते हैं। लाइक फॉर फर्स्ट वन, ऐसा कौन कौन के x का वैल्यू है जो हम उसी फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में पुट कर सकते हैं, ओके? लाइक वो जो फाइंडिंग डोमेन के लिए 3-4 टोटल 6 पॉइंट्स है, आई गेस टोटल 6 पॉइंट्स है, उसको याद रखना है। याद रख के x का वो सारे वैल्यूज निकालो जिसको हम इसी फंक्शन में पुट कर सकते हैं, ओके? सो इन द फर्स्ट केस will be the real number set, okay? In the first case will be the total real number set, because real number के किसी भी सेट, किसी भी एलिमेंट को बैठाओ 0, 1, 2, -1, -10 किसी भी नंबर को, तो वो जो फंक्शन है f(x) is equal to x square minus 3x plus 2, it will always provide a real value, okay? It will not be indefinite value, that's why you can put any x from real number, okay? तो इसी में जो x का वैल्यू है, डोमेन है, वो r है, ओके? इन द सेकंड केस में क्या हम लोग सारे रियल नंबर के वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज x का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे और -3 पुट करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट 7x प्लस 2 बाई 7 इंटू 3 21 प्लस 3 21 प्लस 2 23 बाई 0, 23 बाई 0 इज indefinite, okay? Undefined, sorry, is undefined. So f(x) के वैल्यू 3 नहीं पुट कर सकते, इन द सेम वे -3 नहीं पुट कर सकते। So in the first point of findings domain, that denominator should greater than 0, sorry, should not equal to 0, denominator should not equal to 0. So in this case डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ओके? तो आपको करना क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 पुट करना है। इसमें से एक्स का 2 वैल्यू आएगा, 3 और -3। तो रियल नंबर के सेट में से डोमेन क्या है? रियल नंबर के सेट में से वो -3 एंड 3 को रिमूव कर देना है, ओके? यस, you need to find by your own. इसके केस में क्या होगा? रूट ओवर जी एक्स हमने पढ़े थे 4th पॉइंट या नोट पॉइंट में पढ़े थे ना नीचे में, कि रूट ओवर जी एक्स अगर ऐसा है तो जी एक्स शुड ग्रेटर देन इक्वल टू
0, तो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा, इन दिस केस डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, सो 8x प्लस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0. ओके, एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट, देखो ये fx है एंड दिस वन इज gx. ओके, अबव वन इज fx एंड लोअर वन इज gx. तो सबसे पहले इसका डोमेन में तो रियल नंबर के डोमेन ही है, क्योंकि इसमें तो किसी भी x का वैल्यू पुट कर सकते हो. बट इन दिस केस क्या है, gx शुड ग्रेटर देन 0, राइट, gx शुड ग्रेटर देन 0. I hope it's clear. So x is greater than 5. Okay, in this case intersection रियल नंबर के सेट तो ग्रेटर देन 5 ही आएगा. ओके, डोमेन इसका फाइंड करना है. इसके केस में क्या होगा, सबसे पहले इसके केस में क्या है कि 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 7 रूट के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन के वैल्यू या तो 0 या तो 0 से बड़ा होता है, राइट. यस, या तो 0 से बड़ा या 0 से बड़ा होता है, राइट. यस, उसके बाद आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, जस्ट वही भी कर्व मेथड से आपको फाइंड करना है. क्लियर? यस, ऐसे करके करके पूरा सारे चीज़ का वैल्यू आपको फाइंड करना है. 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका भी जो भी है फाइंड करो. ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0, सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इज नॉट इक्वल टू 0. जितना वैल्यू आगे फाइंड करो. अगर देखो इसके केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 है. एक्स की वैल्यू किसी भी नंबर पुट करो, माइनस प्लस 0 1 2 10 कहीं भी पुट करो, वो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज गिव्स positive number, so it will never get undefined. That's why here you need to remember that x belongs to r. Okay, why? Because r के किसी के वैल्यू के लिए x का वैल्यू r में से किसी भी वैल्यू चूज करो, you will always get positive number which is not undefined. That's why all real number के सेट हो. जीरो करने का अलग से जरूरी नहीं है. अलग से जीरो करोगे तो i मिलेगा, आयोटा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो बट फंक्शन जो है वो रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, दैट्स व्हाई. ओके, एंड रियल नंबर के सेट के लिए ये वैलिड है. नाउ इन दिस केस इट्स आल्सो द सेम. एक्स की वैल्यू किसी भी एलिमेंट पुट करो, -5 पुट करके देखो, -5 पुट करेंगे तो 25 माइनस 5 25 प्लस 30 31, एंड नीचे 25 माइनस 5 20 21 पॉजिटिव वैल्यू. Okay, that's why it will also provide positive value. ऐसे करके पूरा सारे चीज़ का डोमेन आपको फाइंड करना है. अब देखो लास्ट वन का मैं खुद बता देता हूँ. सबसे पहले क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है, ऐसे माइनस साइन के साथ अगर डिनोमिनेटर में है ऐसे रूट वगैरह, तो सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका वैल्यू should not equal to 0 होता है, राइट. यस, इसके साथ इंटरसेक्शन में आएगा. ओके, ये भी तो एक अलग से दिया हुआ है ना, तो रूट के अंदर किसी भी एलिमेंट एक्सप्रेशन दिया है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. यस, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ये आयोटा के फॉर्मेट में आ जाएगा, विच इज कॉम्प्लेक्स. बट यहीं पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से डील नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड ऑल्सो 8 माइनस एक्स इज ऑल्सो शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, एंड इन तीनों का इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है, ये आपको खुद करना है. यही तक बता दिया, यही बहुत है. इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड ऑल्सो इन अदर टॉपिक्स, it will start from 5th September. Okay, whole question series, almost for every chapter like relations and functions we will complete
25:75. What is this 25:75? 25 questions I will complete by myself in the class, and 75 you will do by your own. Okay, you will do by your own. 75 टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे. ओके, बहुत सारे टीचर्स का कंपाइलेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का अच्छे क्वेश्चंस. ओके, PYQs सारे मिला के हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस करेंगे. लाइक फ्रॉम दिस वन, एंड किसी चैप्टर में हो सकता है ज़्यादा भी हो, किसी चैप्टर में थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है. लाइक फॉर रिलेशंस एंड फंक्शंस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. ओके, लाइक फॉर सीक्वेंस, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हर एक केस में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे क्लास में. ओके, अगर आप क्लास कर रहे हैं, आई कैन अश्योर इट दैट यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड. ओके, या so let's start. Okay, now look at this one. This is very interesting question, and it's type of question which really can making you sweaty. Okay, पसीना. Okay, so solution क्या है इसका? देखो सेम ही फॉर्मेट है, सारी चीज़ सेम ही, इसमें बस कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना. बस हम लोग वो जो फाइंडिंग डोमेन फ्रॉम द ग्राफ्स, उसी का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा बहुत यूज करेंगे. ओके, अब देखो fx is equal to under root of cos x minus half by 6 plus 35x minus 6x square, right? Yes. हम लोग क्या देखें, स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर के केस में हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, राइट? सो cos x minus half is greater than equal to 0, और ये डिनोमिनेटर में है, राइट? दैट्स व्हाई इनके केस में हम 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखेंगे. okay? ये 0 नहीं हो सकता, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, नाउ इसमें से क्या आएगा? cos x is greater than half. ओके, cos x is greater than half. ऐसे केसेस में जब cos x हो, ओके, cos x हो, या फिर ऐसे आपको मिल रहा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू समथिंग. ओके, ऐसे केसेस में जब आएगा तो आपको ग्राफ में से ही आसानी होगी. ओके, तो इसका ग्राफ कैसे करेंगे हम लोग? देखो, इसका ग्राफ कैसे करते हैं? कॉस का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है ना कॉस का ग्राफ. साइन का ग्राफ ए से स्टार्ट होता है, तो कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है. कॉस 0 पे 1 होता है, राइट? यस. और क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है ना, cos x का जो वैल्यू है. ओके, सो इसमें एक्चुअली ओके, सो इसमें एक्चुअली यस, वही चीज है. cos x का जो वैल्यू है, ऐसे करके बदलता है, राइट? अब इसमें क्या बोला, cos x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब इसको अगर हम y पकड़े, y इज इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके तरफ हम लोग क्या है, ये y, ये सॉरी ये भी y है, और ये x है. x का वैल्यू जब 0 है तो cos का वैल्यू 1 होता है, राइट? एंड x का वैल्यू जब -π/2 है, राइट? जब -π/2 है तो cos x का वैल्यू 0 है. जब +π/2 है तब भी 0 है, सॉरी +π/2 है तब भी 0 है. नाउ 3π/2 जब होता है तब भी 0 ही होता है, राइट? 3π/2. उसके बाद फिर से 1 कब होता है? 3π/2, ये 4π/2, लाइक 2π पे फिर से वैल्यू 1 होता है.
अब इसमें क्या बोला है, cos x का वैल्यू हाफ से बड़ा है हमेशा, ओके, हाफ से बड़ा है। सो माइनस पाई बाई 2 में तो cos x का वैल्यू 0 है, तो ऑलवेज इट शुड ग्रेटर देन 1। अगर ये वैल्यू 1 है तो ग्राफ जो है ये 1 है, 0 है, सॉरी 1 है, ये हाफ है, तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो कर्व होगा वो ये हाफ वाला जो पॉइंट है इसके नीचे cos x का जो वैल्यू है हाफ से कम है, राइट। इसमें वैल्यू हाफ से कम है, इसमें वैल्यू हाफ से कम है, तो हाफ से ज़्यादा कब है, इसमें से ऊपर में जितने भी कर्व के अंदर पॉइंट्स है उस सब का पॉइंट्स में cos x का वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ा या हाफ के बराबर है, राइट। इन द सेम वे में ये अगर हाफ पॉइंट है तो इसके ऊपर वाले जो सारे पॉइंट्स होगा, इन सारे पॉइंट्स में cos x का वैल्यू हाफ से बड़ा या उसके साथ इक्वल होगा। तो हमारे जो कर्व है cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, वो कौन से केस में होगा, पोर्शन ऑफ द कर्व, पोर्शन ऑफ द x एक्सिस व्हिच आर कवर्ड बाय द कर्व, ओके। तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन में ये वाला पॉइंट यहीं से यहीं तक आएगा, बिकॉज दिस पोर्शन इज कवर्ड बाय कर्व, ऑल्सो दिस पोर्शन इज कवर्ड बाय कर्व। सो फ्रॉम यहीं से cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, x का वैल्यू कितना क्या क्या हो सकता है, यहीं से यहाँ तक हो सकता है और यहीं से यहीं तक हो सकता है। अब देखो यहीं से यहीं तक का जो वैल्यू है वो क्या है, cos किसका वैल्यू हाफ होता है, cos माइनस पाई बाई 3 का वैल्यू 3 है, पाई बाई 3, यस यस, cos माइनस पाई बाई 3 के वैल्यू माइनस हाफ होता है, राइट, नहीं, cos माइनस पाई बाई 3 के वैल्यू हाफ होता है एंड cos पाई बाई 3 के वैल्यू भी हाफ है, राइट, cos पाई बाई 3 के वैल्यू भी हाफ है। तो हमारा जो x का डोमेन है वो माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तक है, राइट, यस। इसके बाद क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये 3 पाई बाई 2 है, उसके बाद 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, उसके बाद और 30 डिग्री ऐड करो, 330 डिग्री मतलब पाई बाई 6, यस 5 बाई 6 ऐड करो, जो भी आएगा कितना आ रहा है ये 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, ये वाला पॉइंट 5 पाई बाई 3 आ रहा है, 3 और 270 प्लस 30 डिग्री 300 डिग्री, 5 पाई बाई 3, ओके। तो वो वाला निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि वो इसमें से जो आएगा उसके बाहर चला जाएगा, ओके। सो ये जो है यही से यही थे माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 यूनियन पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 टू 2 पाई प्लस 60 डिग्री 360 420 डिग्री तक आएगा, ओके, 420 डिग्री जो भी आएगा। नाउ ये तो हम लोगों ने इसमें से x का वैल्यू निकाला, x का डोमेन इसमें से निकाला। अब जो दो फंक्शन है तो हमें इंटरसेक्शन करना पड़ेगा ना, इसमें से भी तो कोई x का डोमेन निकलेगा, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन जो है हमारा फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) निकलेगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसमें से जो डोमेन निकलेगा वो x बिलोंग्स टू -1/6, 6 होगा, ओके, -1/6, 6 होगा, ओके। अब देखो -1/6 कहाँ तक आता है, -1/6 0 से तो इस साइड ही होगा माइनस, राइट, -1/6 मतलब कितना होता है, कैलकुलेट करो, 1/5 मतलब 0.2, 1/6 मतलब 0.16 ऐसे किस आसपास होगा, और -π/3, ओके, -π/3। अच्छा तो ये वाला अगर -1/6 जो है वो एलिमेंट कुछ यहीं पे आसपास होगा, ओके, इससे इस साइड में होगा, ओके, -1/6। इन दिस केस क्या बोला गया, -1/6 से लेकर पूरा 6 तक, राइट साइड में जहां तक 6 तक होगा 6 तक हमारा डोमेन है, राइट, 6 तक हमारा डोमेन है, ओके।
6 तक हमारा डोमेन है, यहीं पे कहीं पे होगा 6 तक हमारा डोमेन है, राइट। 6 तक हमारा डोमेन है। नाउ हमें फाइंड करना है इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, दोनों में ओवरलैपिंग। ओके, ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है ये वाला सेक्शन, राइट, यहाँ तक, उसके बाद यहीं से यहीं तक ओवरलैपिंग। ये वाला जो पॉइंट, यस, ये वाला जो पॉइंट यहीं तक ओवरलैपिंग हो रहा है और यहीं से यहाँ तक ओवरलैपिंग हो रहा है। ओके, आई होप थोड़ा समझ में प्रॉब्लम हो सकता है, पर हाँ, ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? यहीं से यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि -1/6 यहीं तक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट खाली है। ओके, तो ओवरलैपिंग वाला पॉइंट यहीं से यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहीं से कंप्लीट यहाँ तक, इन सारे पॉइंट पर आ रहे हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट को हमें छोड़ना है, क्योंकि cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो इसमें सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट यहीं से -π/3 से π/3, सॉरी हमें थोड़ा सा गलती हो गया, -1/6 जो है ये ऐसे कहीं पे होगा और -π/3 है, उससे ज्यादा नेगेटिव है। ओके, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। तो कॉमन वाला पोर्शन कहाँ तक होगा? -1,6 से लेकर, क्योंकि कॉमन वाला यही है, ये यहीं से कॉमन, ओके, यहीं से कॉमन वाला पॉइंट है। थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, -1/6 जो है वो इससे बड़ा है, -π/3 जो है ये इससे ज्यादा नेगेटिव साइड में है। ओके, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओके, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो -1,6 से π/3 होगा। x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो फिर -1/6 से π/3 होगा, यूनियन यहीं पे कहाँ तक होगा, 5π/3 -1/6, ये ओपन ब्रैकेट है एक्चुअली। ओके, ये ओपन ब्रैकेट है, सो -1/6 से π/3 तक होगा, एंड देन 5π/3 से 6 तक। ओके, यस, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बस ओवरलैपिंग देखना है, जो जो पॉइंट में ओवरलैपिंग है वही तक होगा। ओके, इसमें से x का जो डोमेन है वो निकल कर आ रहा है -1/6 से 6 तक आ रहा है, और इसमें से जो डोमेन निकल कर आ रहा है वो -π/3 से π/3 यूनियन 5π/3 से 420 डिग्री। ओके, पाई के टर्म में जो भी है। नाउ इन दोनों का ओवरलैपिंग जो है वो -1/6 से लेकर π/3 तक आ रहे हैं, एंड 5π/3 से 6 तक आ रहे हैं। आई होप कंप्लीट हुआ होगा फाइनली। 1 घंटे से ऊपर हो गया, एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया। ओके, नाउ a challenging question. It's question number 23. It was acidic. Okay, so it was actually you need to try yourself, try your progress here. Okay, the domain of the function f(x) is equal to under square root of n minus of square root of x to the power 4 minus 21 x square is। इसका डोमेन फाइंड करना है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ऐसे होता है तो डोमेन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 10 माइनस वो जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, राइट। पर यहीं पे एक और एक्सप्रेशन है ना इसके केस में भी, तो इंटरसेक्शन ऑफ x to the power 4 minus 21 x square is also greater than equal to 0। दोनों का इंटरसेक्शन लेकर जो x का वैल्यू आएगा वही डोमेन है। ओके, फाइंड करो। हाँ, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो ये वाला आना चाहिए, सी। ओके, खुद से ट्राई करो, ये होमवर्क है आपका। ना पर्सनल डोमेन जो आपको ध्यान में रखना है, साइन इनवर्स x का पर्सनल डोमेन जो है -1 से 1 तक, कॉस इनवर्स x का भी -1 से 1 तक, एंड tan इनवर्स x का जो पर्सनल डोमेन है वो है x बिलोंग्स टू r, x का कोई सा भी वैल्यू रियल नंबर के सेट में से आप पुट कर सकते हो। ओके, साइड में रेंज दिया हुआ है। ये जब हम ITF पढ़ेंगे स्पेशली
उनके क्लास में और अच्छे से इसको समझेंगे। अभी बस याद रखो एज अ रिजल्ट tan इनवर्स x का पर्सनल डोमेन r होता है, इसको ध्यान में रखना होता है। ओके, लाइक इसका जो बाद वाला क्वेश्चन है उसमें काम में आएगा। cot इनवर्स x का जो पर्सनल डोमेन है वो भी रियल नंबर का सेट होता है, और sec इनवर्स x का पर्सनल डोमेन जो है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से लेकर यूनिट इन्फिनिटी तक, मतलब -1 से 1 तक का जो वो पॉइंट है वो नहीं आएगा। ओके, एंड लास्ट वन कोसेक इनवर्स x का भी पर्सनल डोमेन जो है वो सेक इनवर्स x के साथ सेम मैच करता है। बस एक ही चीज़ जो कॉट इनवर्स एंड टैन इनवर्स के लिए स्लाइड्स आर डिफरेंट, नहीं सेम ही है, डोमेन तो सेम ही है, रेंज थोड़ा बहुत अलग है। ओके, रेंज डोमेन को डोमेन ITF के लिए हम अलग से पढ़ेंगे। ओके, नाउ वन क्वेश्चन यू नीड टू राइट विथ मी। ये वाला क्लास थोड़ा लंबा खींचेगा अगर ऐसे लिखेंगे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपको घर में करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ fx दिया हुआ है कुछ, fx क्या है, fx इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर माइनस 4 प्लस log ऑफ 10 base 10 x cube minus x cube minus x. Okay, you have to find the domain of this. Okay, अब देखो इसका केस में क्या है, डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट इक्वल टू 0, राइट, दिस इज एक्सप्रेशन। इंटरसेक्शन हमने क्या पढ़ा था, fx एंड gx दो अलग अलग अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उन दोनों का जो एडिशन है, लाइक इसका अगर fx पूरा इसका gx मान लो, दोनों का एडिशन है, दोनों का एडिशन का हम लोगों को डोमेन कैसे निकालते हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 था। ओके, तो इसका डोमेन इसमें से निकलेगा, इसका डोमेन, इसका केस लिखो। लॉग का पर्सनल डोमेन ऑलरेडी हमने लिख चुके थे पहले में, इसीलिए नहीं लिखे। ओके, तो 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट। इंटरसेक्शन ये तो ऑलरेडी प्रूफ है, x दिया हुआ है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो x क्यूब माइनस x ये जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके, x क्यूब माइनस x ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इसी में से x का कुछ डोमेन निकलेगा, इसी में से निकलेगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन जो है वही डोमेन कहलाएगा। ओके, तो वेवी कर्व मेथड सीखना वो इम्पोर्टेंट है, ये होमवर्क था। ओके, खुद से करनी है, एक्चुअली इजी है बहुत, बता दिया। फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ, अब fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, इसका डोमेन आपको फाइंड करना है। देखो फार्मूला यूज करो पर्सनल डोमेन का भी, एंड वही कोई एक्सप्रेशन है और वो इवन स्क्वायर रूट का इवन स्क्वायर रूट है, तो यही पे 1/2 है। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइक राइट 1/2 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर 1/2 इवन स्क्वायर रूट सेकंड बी वाला पॉइंट। ओके, क्लियर है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 1/2 टू द पावर उस साइड में जाएगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ जो है बेसिक मैथ्स का पार्ट है, ये आपको खुद करनी है, कोई भी कर्व मेथड सीख लीजिए। ओके, इसके साथ इंटरसेक्शन है। अब देखो लॉग पर्सनल डोमेन पे ध्यान रखना है, तो ये जो लॉग बेस ए लॉग बेस बी और ये था ना, राइट, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता है, राइट। यस, इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लो, उसमें से जो आएगा वही आपका पर्सनल डोमेन होगा। इसके बाद एक और आंसर है, एक और क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में ही ना, क्वेश्चन नंबर 26।
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, ये लिख लो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, दिस बाय log बेस e एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू। ओके, नाउ इसके केस में क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन मान लो। सबसे पहले जो है वो cos इनवर्स x, राइट, इसको x की तरह ट्रीट करो। तो cos इनवर्स x की तरह ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, cos इनवर्स x का पर्सनल डोमेन क्या होता है? -1 से 1 तक। तो ये जो x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका जो वैल्यू है -1 से 1 तक आएगा। ये इसमें से जो 2-3 केस बनेगा वो करना है, इंटरसेक्शन लेना है, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये नीचे में है, राइट, यस, तो वो 0 नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके साथ लॉग का जो पर्सनल डोमेन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर के केस में डिनोमिनेटर ऑलवेज शुड नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये जो है ये बेस है, ओके, ये जो है बेस है। अब देखो लॉग का पर्सनल डोमेन में, लॉग का जो पर्सनल डोमेन है उसके केस में ये जो इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, राइट। इन सारे चीज़ों का इंटरसेक्शन लेकर जो वैल्यू बनेगा वही तो हमारा पर्सनल, वही एक्स का डोमेन होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू अभी तक तुमने जो किया है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, बट यस, प्लेंटी ऑफ टाइम यू हैव, आई गेस। नहीं है तब भी टाइम निकालना है, निकाल के ये सारी चीज सॉल्व करना है, ओके। नाउ वी आर अबाउट टू एंड द सेशन। यस, यही तक क्लास है आज के लिए। आज के लिए इतना ही है, और या इतना आपको सॉल्व करके आना। ये थोड़ा लंबा चला गया एक्चुअली, बीच में थोड़ा मैंने बोला है इसीलिए। 2 और क्वेश्चन है एक्चुअली, दे सकते हैं। नहीं, ये मैं खुद करवाऊंगा, ओके, ये हम खुद करवाएंगे अगले क्लास में। तो यस, आफ्टर दिस यू नीड टू डू by yourself using the hints provided here, and I hope थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो you just need to think while stay towards the screen, okay, good night, सब बखैर।